Hello students, good evening. Tomorrow you have paper and I have got late but I'm trying to make a video and tomorrow morning you can listen it, watch it, and I don't have much time to explain on board, but yes, I'm making video uh, from text, right? So you'll be able to understand. These are the POE question paper, and if you remember these questions, then only you can be able to write something. That is why I am making. So listen carefully. First question was what is the what is meant by conference call, right? So this question, conference call, you have to know. So the again and again I'm telling you that just understand the concept of the terminology. If you understand what is the concept, you will be able to write any language paper, because language we speak, we so that number of examples, number of description you can take from day to day life, but concept must be clear, right? For example, conference call. So suppose this question will be asked, so you know that what is conference call. A conference call is a telephone meeting, right? So that's a very beginning, you just have to remember this phrase, that is telephone meeting, right? Conference call is telephone meeting that allows multiple participants in different locations to communicate simultaneously, right? So one camera will be there and then the person will call and he will connect with so many people, right? So many candidates, so you will be connected, along with you number of people are connected, right? So that is called conference call, and we do conference call many a time, right? It is essentially a virtual meeting conducted over a phone line or through internet based ऑडियो और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म. गूगल पे करते हैं हम, जूम पे मीटिंग करते हैं, दैट इज़ कॉन्फ्रेंस कॉल, राइट? हम कॉन्फ्रेंस में लेते हैं, ऑडियो में करते हैं, फ़ोन में अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ, दैट इज़ ऑल्सो कॉन्फ्रेंस कॉल. वीडियो कॉल करते हैं, दैट इज़ ऑल्सो conference call. So this detail you have to tell. Instead of physically gathering in one place, individuals can dial into a designated phone number or join an online meeting link to participate in the discussion. You just do conference call, you just receive conference call, many a time you must have done it, right? अपने फ्रेंड्स को, फैमिली को, मम्मी पापा को, इकट्ठे भाई बहनों को बात करना, तो हम एक मीटिंग कर लेते हैं, व्हाट्सएप वीडियो कॉल कर लेते हैं, कभी जूम पे बैठ जाते हैं, कभी गूगल मीट कर लेते हैं, और इस तरह से हम एक कॉन्फ्रेंस कॉल करते हैं. तो दैट्स नॉट न्यू टर्म फॉर यू, है ना? तो प्लीज़ बी फैमिलियर एंड राइट इट डाउन. नाउ here is a breakdown of key aspects of conference call. मल्टीपल पार्टिसिपेंट्स रहते हैं इसमें, बस आप ये पॉइंट्स भी लर्न कर लोगे तो दैट इज़ इनफ, बिकॉज डिटेलिंग यू विल बी एबल टू डू इट. तो मल्टीपल पार्टिसिपेंट, मैं इसको रीड इसलिए नहीं कर रही हूँ कि आप सिर्फ इसको समझ जाओ कि मल्टीपल पार्टिसिपेंट्स हैं इसमें, है ना? फिर रिमोट पार्टिसिपेशन है, बाहर से अमेरिका, लंदन, कहीं से भी कोई अटैच, कहीं से भी कोई कनेक्ट हो सकता है. फिर रियल टाइम इंटरेक्शन, है ना? ये मैं बता देती हूँ. रियल टाइम कॉन्फ्रेंस कॉल्स फैसिलिटेट रियल टाइम ऑडियो कम्युनिकेशन, अलाउइंग पार्टिसिपेंट्स टू स्पीक, लिसन एंड respond to each other in a timely manner. Many modern platforms are also offer video capabilities enabling visual interaction. तो हम interaction भी कर लेते हैं, है ना? तो ये किसमें कॉन्फ्रेंस कॉल का एक बहुत बड़ा एडवांटेज है. फिर है पर्पस ही होगा ना भाई, मीटिंग का पर्पस होगा, कोई एजेंडा होगा. तो कॉन्फ्रेंस कॉल सर्व वेरियस पर्पस इंक्लूडिंग टीम मीटिंग, क्लाइंट मीटिंग, ट्रेनिंग एंड वर्कशॉप्स, राइट? अनाउंसमेंट्स, इंटरव्यूज, ये सब. टेक्नोलॉजी, कॉन्फ्रेंस कॉल्स कैन बी फैसिलिटेटेड थ्रू ट्रेडिशनल फ़ोन जो आते थे पहले, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, है ना? वीडियो कॉन्फ्रेंस, ये सब मन से लिख सकते हो आप, पढ़ लेना पर इसको एक बार, ठीक है? तो इन एसेंस अ कॉन्फ्रेंस कॉल इज़ अ वैल्यूएबल कम्युनिकेशन. आप सोचो कितना काम हमारा इजी हो जाता है. तो दैट इज़ अ वैल्यूएबल कम्युनिकेशन, है ना? टूल that enables efficient and cost effective
collaboration among individuals and groups who are geographically डिस्पर्स है ना. हम जोग्राफिकली कोई अमेरिका से बोल रहा है, कोई लंदन, कोई गांव से, कोई कहीं से है. वी ऑल आर जोग्राफिकली डिस्पर्स. इट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन मॉडर्न बिजनेस. अभी तो बिजनेस में भी बहुत ज़रूरी नहीं है कि आप फिजिकल जाओ, कभी कभी आप वर्चुअली भी कनेक्ट हो जाते हो. तो एंड कम्युनिकेशन बाय फैसिलिटेटिंग रियल टाइम डिस्कशंस एंड इंफॉर्मेशन शेयरिंग विदाउट द कंस्ट्रेंट्स ऑफ फिजिकल प्रेजेंस. इतना पेन नहीं लेना है तो आप घर से ही मीटिंग अटेंड करते हो. तो दिस इज़ कॉल्ड कॉन्फ्रेंस कॉल. सेकेंड वन बहुत इम्पॉर्टेंट, बिजनेस प्रपोजल. राइट, क्या है बिजनेस प्रपोजल? अ बिजनेस प्रपोजल इज़ अ फॉर्मल रिटन डॉक्यूमेंट, है ना. बिजनेस प्रपोजल देते हैं हम, फॉर्मल रिटन डॉक्यूमेंट. डिज़ाइंड क्यों बनाते हैं? क्यों? एक तो फॉर्मल है, दूसरा रिटन डॉक्यूमेंट है, वर्बली बात नहीं होती है इसमें, है ना. एंड डिज़ाइंड टू परसुएड अ पोटेंशियल क्लाइंट, है ना. किसको आप एक क्लाइंट को परसुएड करते हो, उसको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हो. पार्टनर, किसी पार्टनर को, या इन्वेस्टर और अदर स्टेक होल्डर टू अप्रूव अ प्रोजेक्ट. प्रोजेक्ट किसके लिए बन रहा है, किसके लिए है वो है एक क्लाइंट के लिए या पार्टनर के लिए, इन्वेस्टर के लिए या स्टेक होल्डर के लिए, है ना. एंड परचेज अ प्रोडक्ट और सर्विस और इन्वेस्ट इन अ बिजनेस वेंचर. या तो आप कह रहे हो कि भाई हम मिलके कोई एक बिल्डिंग बनाते हैं, हम मिलके कोई बहुत बड़ा स्टार्टअप डालते हैं, उसके लिए आप इन्वेस्टर्स को प्रपोजल देते हो. या फिर आपका कोई सर्विसेज है, आप कोरियर सर्विस है, आप ज़ोमैटो सब ये सारे भाई वो हमें क्या दे रहे हैं, ज़ोमैटो के थ्रू. उन्होंने ज़ोमैटो जो एक कंपनी है, उनके वर्कर्स जा के कोई अपना स्वीट्स को यहाँ वहाँ सब जगह है ना, तो उनके वहाँ हमने ऑर्डर किया उनके होटल में, और उनके जो ज़ोमैटो वाले पर्सन वहाँ बैठे हुए हैं, उनको उन्होंने भेज दिया कि आपको इस डायरेक्शन में, आपको बंगाली में जाना है, आपको खंडवा रोड में जाना है, आपको लाला रामनगर में. तो इस तरह से उनके ऑफिस में ज़ोमैटो की कंपनी के लोग बैठे. तो जैसे ही अपना स्वीट्स में या सयाजी होटल में या जहाँ भी किसी होटल में खाने के आपने ऑर्डर दिया, तो वहाँ वो लोग उस डायरेक्शन में जाके सर्विस सर्व करके आता है. तो ये जो है दैट्स अ काइंड ऑफ प्रपोजल कि ज़ोमैटो ने उनको कांटेक्ट किया होगा, अलग अलग होटल्स को, या होटल ने ज़ोमैटो को कांटेक्ट किया होगा. तो दिस इज़ जस्ट एग्जाम्पल, सेम एग्जाम्पल यू कैन गिव इन योर एग्ज़ाम ऑल्सो. तो ये एक फॉर्मल और रिटन डॉक्यूमेंट जाता है और फिर उसको पढ़ा जाता है, और उसको ये सर्विसेज है, ज़ोमैटो अपने सर्विसेज देती है ना. फिर प्रोडक्ट भी होते हैं. मान लो कि कोई कंपनी अच्छा फर्नीचर बनाती है, कैसा भी फर्नीचर, वो फर्नीचर बनाती है, तो वो कहती है कि कोई स्कूल या कॉलेज या कोई इंस्टीट्यूशन, कोचिंग है, ओपन हो रही है, तो वो वहाँ जाके अपना प्रपोजल देते हैं कि आपको फर्नीचर की ज़रूरत होगी, तो इफ़ यू आर नीडेड फर्नीचर, so we can have this shop and we can serve this kind of furniture. तो आप कैटलॉग भी दे आते हो, आप अपना आपकी स्कीम्स चलती है, वो सारा सब कुछ डिटेल वो प्रपोजल में होता है. तो उसको देख के आते हो, तो दिस इज़ द प्रपोजल. इट आउटलाइंस अ स्पेसिफिक ऑफरिंग डिटेल्स, है ना. और ये क्या करता है, ऑफर, वही मैंने बताया, आप क्या क्या स्पेशल ऑफर दे रहे हो, तो वो डिटेल रहता है उसमें, है ना. इट्स बेनिफिट addresses the needs and requirement of the recipient. और आप कहते हो कि सर आपको जैसा मटेरियल चाहिए ना, छोटा चाहिए, स्कूल किंडर गार्डन है या किड्स का स्कूल है या फिर बड़ा है या छोटा है, जो भी, तो सर हमारे पास हर तरह की, वी हैव ऑल काइंड ऑफ फर्नीचर, है ना. तो हम इस तरह का फर्नीचर वी कैन प्रोवाइड यू. तो इस तरह की जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो हम फुलफ़िल करेंगे, इसलिए आप उनको प्रपोजल दे रहे हो. ऐसा एक प्रपोजल बनता है. एंड प्रोवाइड्स अ क्लियर कॉल टू एक्शन. और आप उनको क्या करते हो, एक बिल्कुल क्लियर कि भाई उन्होंने ऑर्डर दिया तो आपके पास फिर वो अवेलेबिलिटी होनी चाहिए. इस तरह से प्रपोजल में, रिटर्न में ये सारी चीज़ें लिखी रहती है. फिर की एलिमेंट्स दैट डिफाइन अ बिजनेस प्रपोजल. क्या की एलिमेंट्स है, बस आप इसको एक बार भी सुन भी लोगे तो आप एग्ज़ाम में लिख पाओगे. एक तो फॉर्मल डॉक्यूमेंट है,
दूसरा परसुएसिव पर्पस है ना। तो फॉर्मल है, इनफॉर्मल ऐसी बातें में नहीं होता वो बहुत फॉर्मल डॉक्यूमेंट। इट इज़ अ स्ट्रक्चर्ड एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड डॉक्यूमेंट, है ना, कि उसका पूरा एक, जैसे हम लिखते हैं ना एप्लीकेशन में टू द प्रिंसिपल, ऐसा, तो उसका भी एक पूरा फॉर्मल स्ट्रक्चर है कैसे प्रपोजल बनता है, और वो बड़ा वेल ऑर्गेनाइज है। उसका एक एक शब्द का अपना अपना मीनिंग है, और कौन सा वर्ड कहाँ प्लेस होगा, ईच एंड एवरीथिंग विल बी टेकन केयर, है ना। फिर ऑफन फॉलोइंग अ स्पेसिफिक फॉर्मेट टू ensure clarity and professionalism. Why do we learn applications and request application and apology and order, placing order? क्यों है, क्यों, why do we learn format and way of writing and writing skills? Why it is required? सबको आता है बोलना, मुझे भी आता है, मैं कुछ भी लिख दूँ, पर कुछ भी नहीं होता है। वी नीड टू फॉलो द फॉर्मेट एंड करेंट फॉर्मेट। क्यों? क्योंकि उस माइंडसेट से उसमें क्लैरिटी होती है, और जो पढ़ रहा है उसको भी बहुत ज़्यादा हर ईच एंड एवरी कॉर्नर इज़ क्लियर, तो उसको भी पता होता है। तो इसीलिए ये क्लैरिटी के कारण और प्रोफेशनलिज्म दिखना चाहिए कि आप ऐसे घरेलू बातें नहीं कर रहे। इट्स नॉट डोमेस्टिक, इट्स नॉट वन टू वन, इट्स नॉट इनफॉर्मल, बट इट इज़ वेरी मच फॉर्मल। तो वो प्रोफेशनलिज्म के लिए आप एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट बनाते हो, एंड देन यू फॉलो फॉर्मेट एंड राइटिंग स्टाइल एंड एवरीथिंग, एंड विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये फॉर्मल डॉक्यूमेंट है। दूसरा परसुएसिव पर्पस। परसुएसिव किसी को कॉन्फिडेंस में लेना, मनाना, है ना। तो द प्राइमरी गोल इज़ टू कन्विंस द रिसिपिएंट ऑफ द वैल्यू एंड फीजिबिलिटी ऑफ द प्रपोज सोल्यूशन और अपॉर्चुनिटी। आप उनको कन्विंस करना चाहते हो कि सर आप एक बार हमसे लेके तो देखो हमारा प्रोडक्ट, है ना। तो जो रिसिपिएंट है उसको आप कन्विंस करना चाहते हो, ये उसका पर्पस होता है। एंड इट एम्स टू एड्रेस देयर पेन पॉइंट्स एंड डेमोन्स्ट्रेट हाउ द ऑफरिंग कैन प्रोवाइड अ बेनिफिशियल आउटकम। भाई आप अकेले तो नहीं, यू आर नॉट ऑल अलोन, अदर्स आर ऑल्सो सेंडिंग प्रपोजल। फर्नीचर की दुकान इज़ नॉट वन योर्स ओनली, it may be others. There is very tough competition, cutthroat competition. So that's why when you make your proposal, so that in your proposal points very much clear and demonstrate how the offering can प्रोवाइड अ बेनिफिशियल आउटकम। कि सर अगर आप हमसे टाई अप करते हो, हमसे लेते हो, तो आपको कितना प्रॉफिट होगा। हमेशा आपको कौन कौन सा प्रॉफिट होगा जो शायद दूसरी कंपनी या दूसरे लोग ना दे पाए, ये उसमें क्लियरली स्पेसिफिकली इट शुड बी मेंशन। तीसरा है स्पेसिफिक ऑफरिंग। आपका हम क्यों लें, अगर बाज़ार में वही चीज़ उतने में मिल रही, तो आपके में क्या स्पेशल ऑफर्स है। तो वो है, इट क्लियरली डिफाइंस what is being proposed, क्या प्रपोज किया जा रहा है, एंड वेदर इट इज़ अ प्रोडक्ट, सर्विस, प्रोजेक्ट, पार्टनरशिप और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। आप जो भी ऑफर्स दे रहे हो उसमें आपको क्लैरिटी होना पड़ेगी कि आप कौन सा प्रोडक्ट देते हो या क्या सर्विसेज देते हो या प्रोजेक्ट है आपका, वो क्लैरिटी भी होना चाहिए, और ऑफर्स क्या क्या हैं आपके। फिर टारगेटेड ऑडियंस, हर बार ऑडियंस अलग अलग रहेगी। इट इज़ टेलर्ड टू अ स्पेसिफिक नीड, है ना। जैसे आपको वही प्रपोजल, वही आपको फर्नीचर एक स्कूल में भी भेजना है, एक कॉलेज में भेजना है, कोचिंग में भेजना है, तीनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो क्या करेंगे कि आपकी टारगेटेड ऑडियंस अलग हो गई। एक स्कूल के ऑडियंस अलग तरह की है, कॉलेज में बच्चे हैं, बड़े हैं, उनकी क्लास, उनका पैटर्न अलग होता है कॉलेज लेवल पे, फिर कोचिंग का बिल्कुल अलग होता है। तो ये टारगेटेड ऑडियंस है कि आपका जब प्रपोजल, आप तीनों को, आपको रिस्ट्रिक्टेड तो ना कि कॉलेज में अगर आपका टाई अप हो गया तो आप स्कूल में अपना सर्विसेज या अपना प्रोडक्ट सेल नहीं करोगे, आप दोगे वहाँ भी, पर वहाँ के लिए जो प्रपोजल बनेगा वो एक स्पेसिफिक हो जाएगा। तो टेलर्ड मतलब वहाँ पे आप कुछ नया कट वट करके और नए तरीके से प्रपोजल बनाओगे, दैट इज़ टेलर्ड, है ना, रिफाइन करके। तो इट इज़ टेलर्ड टू द स्पेसिफिक नीड, इंटरेस्ट एंड कंसर्न्स ऑफ इंटेंडेड रेसिपिएंट। क्योंकि रेसिपिएंट अलग अलग हो गए, तो उनकी क्या क्या नीड्स हैं, क्या इंटरेस्ट है उनका, क्या कंसर्न्स है, उसको माइंड में रख के स्कूल का प्रपोजल अलग बनेगा, कॉलेज का अलग, कोचिंग का अलग। दिस इज द एग्जाम्पल, है ना। फिर अ सक्सेसफुल प्रपोजल डिमॉन्स्ट्रेट्स एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर सिचुएशन।
वो क्या करता है, एक अच्छा प्रपोजल होता है, डिमॉन्स्ट्रेट एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर सिचुएशन, वो इस सिचुएशन को समझता है, एंड हाउ द ऑफरिंग अलाइंस विद देयर गोल्स, और वो बताता है कि सर आप हमसे लोगे तो हम ये बेनिफिट देंगे, हम ऐसा प्रोडक्ट डैमेज होगा तो इतने साल का आपको गारंटी वारंटी दे रहे, ये सारी चीज़ें क्लियर रहना चाहिए, तो वो एक बड़ा अट्रैक्टिव प्रपोजल होता है। फिर प्रॉब्लम सोल्यूशन फोकस है ना, कि सर हमें पता है कि आपके यहाँ ऐसे ऐसे प्रॉब्लम आते हैं, फर्नीचर ऐसा होता है, सपोज़ ब्लैक बोर्ड का बिजनेस भी होता है, मैंने क्लास में दिया था कि ब्लैक बोर्ड का बिजनेस भी होता है, तो ब्लैक बोर्ड में कि कितने दिन में वो ब्लैक बोर्ड आपका उसकी लाइफ कितनी है, उसको वाटर से क्लीन करोगे तो क्या होगा, उसको कैसे क्लीन करना है, उसमें वाइट कलर चॉक का ना रह जाए, ये सारी चीज़ें, वो बहुत ज़्यादा शाइन ना करे, नहीं तो पीछे के बच्चों को नहीं दिखता। दीज आर द डिफरेंट प्रॉब्लम्स विच कैन अकर, एंड देन व्हेन यू आर सेलिंग योर प्रोडक्ट, सो देन यू आर गिविंग सोल्यूशन एज वेल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें प्रपोजल में, कि दैट इज़ प्रॉब्लम सॉल्यूशन फोकस, है ना। तो इट ऑफन आइडेंटिफाइज अ प्रॉब्लम, है ना, पहले तो वो प्रॉब्लम बताता है, और फिर और नीड ऑफ द रेसिपिएंट फेसेस, कि आप अच्छा सर आप क्या ब्लैक बोर्ड में ये प्रॉब्लम आ रही थी वो, एंड प्रेजेंट्स द प्रपोज ऑफरिंग एज द सोल्यूशन, तो हमारे पास उसका ये सोल्यूशन है, वो देते हुए इफ़ यू मेक योर प्रपोजल इट विल बी वेरी स्ट्रॉन्ग। इट हाईलाइट्स द बेनिफिट्स एंड एडवांटेजेस ऑफ चूजिंग द पर्टिकुलर सोल्यूशन, कि सर अगर आप हमारे साथ इसमें जाते हो तो आपको ये इतने इजीली ये सोल्यूशन मिलता है, तो नेचुरली अगर आपके पास बहुत फीजिबल और बहुत अच्छा सोल्यूशन है तो योर प्रपोजल विल बी सिलेक्टेड। फिर वैल्यू प्रोपोजिशन क्या है, इट क्लियरली आर्टिकुलेट्स द वैल्यू दैट द रेसिपिएंट विल रिसीव, सच एज increase efficiency, cost saving, revenue generation, improved quality और achievements of strategic ऑब्जेक्टिव्स। तो आप क्या, आपका वैल्यू प्रपोजिशन क्या है, वो क्लियर होना चाहिए, कि जिसको आप दे रहे हो रेसिपिएंट जो है विल रिसीव सच एज इंक्रीज एफिशिएंसी, की हाँ ठीक है, अगर उनका 10 साल चलता है बोर्ड तो हमारा 12 साल चलेगा, हमारे भी ये नहीं है, हमारा चॉक फ्रेंडली है, इको फ्रेंडली कुछ भी है ना। फिर कॉस्ट सेविंग है, कि अगर आप इकट्ठा बल्क में लेते हो तो इतना आपको प्रॉफिट होगा। रेवेन्यू जनरेशन है, कि अगर आप इकट्ठा वन टाइम इन्वेस्ट में हमें पेमेंट कर देते हो तो हम उसको रिकर कर लेंगे, बैंक में सेविंग कर देंगे, आपको फिर इतना % देना, जो भी है आपके को। और इम्प्रूव क्वालिटी, नेक्स्ट टाइम अभी हम 10 साल में आपको, और हर 2 साल में हमारे प्रोडक्ट्स में अपडेट होते हैं तो हम आपको और अच्छा मटेरियल प्रोवाइड, कुछ भी इस तरह की चीज़ें है ना। फिर कॉल टू एक्शन, और फिर उसके बाद इट कंक्लूड्स विद अ क्लियर इंस्ट्रक्शन ऑन व्हाट द रेसिपिएंट शुड डू नेक्स्ट, कि चलो अगर आपको अभी ऑर्डर करना है तो आप क्या करोगे, सच एज साइनिंग द कॉन्ट्रैक्ट, कि ठीक है आप साइन करने तैयार, तो मैं क्या करूँ पहला, तो आप उनको लिख के भेजोगे कि इफ़ यू एक्सेप्ट आवर प्रपोजल सो व्हाट्स द नेक्स्ट स्टेप, क्या होगा, शेड्यूलिंग अ मीटिंग और अप्रूविंग द प्रोजेक्ट। तो आप मीटिंग शेड्यूल करना चाहते हो या आप डायरेक्ट सिग्नेचर करो कि येस योर प्रपोजल इज़ एक्सेप्टेड, क्या है वो उनको आपको बताना पड़ेगा कि सर हम जैसे ही द मोमेंट यू डिसाइड टू अप्रूव आवर प्रपोजल, सो व्हाट शुड बी द नेक्स्ट स्टेप, है ना। ये अ वेल क्राफ्टेड बिजनेस प्रपोजल टिपिकली इंक्लूड्स द फॉलोइंग सेक्शंस। अब उसमें क्या है ये अच्छे से समझ लो। एग्जीक्यूटिव समरी, अ ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ एंटायर प्रपोजल। प्रपोजल एक पेज का नहीं है, ये एप्लीकेशन नहीं है, इसमें पहले आपने एक छोटा सा पूरा आपके जैसे कैटलॉग लगा रहे हो आप, उसमें आप पूरे डिटेल दे रहे हो, फर्नीचर का डिटेल दे रहे हो, फर्नीचर कैसे होता है, कितने जॉइंट्स हैं उसमें, कैसे जाएगा वहाँ, कैसे इंस्टॉल होगा, सारा कुछ। तो आपका पूरा ओवरव्यू शॉर्ट में आप बिगनिंग में लगाओगे कि ये पूरा प्रपोजल है, हाईलाइटिंग द की बेनिफिट्स, उससे आपको क्या फ़ायदा होगा और सॉल्यूशंस क्या है, ये सब। फिर प्रॉब्लम नीड स्टेटमेंट क्लियरली डिफाइंस द इशू और अपॉर्चुनिटी दैट द प्रपोजल एड्रेसेस। तो आप प्रॉब्लम और या नीड स्टेटमेंट वो प्रॉब्लम प्रॉपर लगाओगे, फिर प्रपोज सोल्यूशन, आपके पास सोल्यूशन, तो उसके 1 2 3 4 पेजेस बनेंगे। मैथडोलॉजी
और अप्रोच एक्सप्लेनिंग हाउ प्रपोज सोल्यूशन विल बी इम्प्लीमेंटेड और डिलीवर्ड। बातें नहीं करना है, अगर वो आप करते हो तो कैसे होगा वो, है ना। फिर बेनिफिट्स तो आउटलाइन करोगे कि आपको बेनिफिट्स क्या क्या होंगे, टाइमलाइन कब तक करोगे, प्रोडक्ट कब तक आएगा, कि ऑर्डर के कितने दिन बाद आएगा, कॉस्ट प्राइसिंग कंपनी, ये सारे पॉइंट्स बेटा अच्छे से लर्न कर लेना। मतलब आपने जो ऊपर किया पॉइंट्स लर्न कर लेना। तो इसमें ये जो है ड्राफ्टिंग है, तो ड्राफ्टिंग के लिए ये सारे पॉइंट्स हैं जो मैंने अभी पढ़े, कि जिसमें एग्जीक्यूटिव समरी है ना, प्रॉब्लम नीड स्टेटमेंट, प्रपोज सोल्यूशन, मैथडोलॉजी और अप्रोच, बेनिफिट्स, टाइमलाइन, कॉस्ट प्राइसिंग कंपनी, टीम इंफॉर्मेशन, केस स्टडीज़ है ना, टीम एंड कंडीशंस, कॉल टू एक्शन और अपेंडिक्स, राइट। ये इतना समरी शॉर्ट में ये कि प्रपोजल इज़ अ क्रिटिकल कम्युनिकेशन टूल, है ना। तो ये अच्छे से याद रखो कि ये क्रिटिकल कम्युनिकेशन टूल है, यूज टू सिक्योर अपॉर्चुनिटीज़ बाय प्रेजेंटिंग अ कंपेलिंग केस ऑफ अ स्पेसिफिक ऑफरिंग एंड डिमॉन्स्ट्रेटिंग इट्स वैल्यू टू द इंटेंडेड रेसिपिएंट, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आपके उसमें और है, क्रॉस कल्चरल अवेयरनेस। ये दूसरी बात है ना, क्रॉस कल्चरल अवेयरनेस, कल्चर का अवेयरनेस, दूसरे कल्चर में क्या होता है, रेफर्स टू द अंडरस्टैंडिंग सेंसिटिविटी, कि भाई किसी को हर्ट ना हो, उनके अपने रिचुअल्स हैं, उनके अपने कस्टम है, लेकिन साथ में रहना है। तो ये क्या है, ये अवेयरनेस रेफर्स टू, सबसे इम्पॉर्टेंट है, अंडरस्टैंडिंग सेंसिटिविटी एंड रिस्पेक्ट फॉर, और रिस्पेक्ट करना दूसरे के कल्चर का, for the differences of cultural values, beliefs and behavior and communication system, है ना, that exists among people from various cultural background। कल्चरल क्रॉस कल्चरल अवेयरनेस का मतलब है कि आपको उनको समझना पड़ेगा, है ना, अंडरस्टैंडिंग सेंसिटिविटी एंड रिस्पेक्ट फॉर डिफरेंसेस इन कल्चरल वैल्यूज़, उनकी कल्चरल वैल्यूज़ को समझो, उसका रिस्पेक्ट करो, बिलीव्स उनके अपने हैं उनको एक्सेप्ट करो, उनका बिहेवियर, उनका कम्युनिकेशन स्टाइल, सबको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें, ये पॉइंट्स मेन पॉइंट्स हैं इसके, क्या क्या, अंडरस्टैंडिंग सेंसिटिविटी, है ना, रिस्पेक्ट फॉर डिफरेंसेस, कल्चरल वैल्यूज़, बेनिफिट्स, बिहेवियर एंड कम्युनिकेशन स्टाइल, ये सारे पॉइंट्स हैं उसके, ठीक है। फिर इट इन्वॉल्व्स रिकग्नाइजिंग दैट one's own culture is not the only right way of doing things and developing the ability to interact effectively and appropriately with individual from different culture। कुल मिलाकर बात यह है कि कल्चरल अवेयरनेस होना चाहिए कि भाई वो उनका कल्चर है, वो उनके रिचुअल्स हैं, वो उनके कस्टम्स हैं, हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, हमको उसका रिस्पेक्ट करना है। हम बहुत हमारे इंडियन कल्चर में देखते हैं कि हिंदू मुस्लिम में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो वो जहाँ जहाँ हारमनी है वो इसीलिए क्रॉस कल्चरल अवेयरनेस, क्योंकि आप अपने नेबर से स्टार्ट करोगे तो घर में भी इवन बहुत सारे डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन, तो एडजस्ट तो करना ही पड़ेगा। फिर घर से स्टार्ट करो, फिर नेबर से स्टार्ट करो, फिर एक शहर, फिर कंट्री, फिर पूरा वर्ल्ड, फिर फॉरेन में। तो जहाँ भी आप रहोगे वहाँ पे आपको उनके बिहेवियर, उनके कम्युनिकेशन, उनकी ईटिंग हैबिट्स, उनका लिविंग स्टाइल, सबको आपको एक्सेप्ट करना है। टोटली दिस इज़ कॉल्ड क्रॉस कल्चरल अवेयरनेस। अब इसमें क्या है इसके की पॉइंट्स, अंडरस्टैंडिंग कल्चरल डिफरेंसेस, है ना, ये पॉइंट्स लर्न कर लेना कि रिकग्नाइजिंग कल्चर्स वेरी सिग्निफिकेंटली, है ना, कि उनके डिफरेंसेस क्या क्या है, कम्युनिकेशन स्टाइल, वर्बल एंड नॉन वर्बल क्यूज, डायरेक्टनेस, है ना, वर्सेस इनडायरेक्टनेस, हाई कंटेक्स्ट और लो कंटेक्स्ट कम्युनिकेशन। अब ये इसमें आप बहुत ज़्यादा डिटेल में मत जाओ, अब तो ये समझो कि उनका बोलने का तरीका हो सकता है हमारे यहाँ कोई चीज़ ऐसी होती हो जिसको हम बहुत बुरा नहीं मानते पर उनके कल्चर में मान जाते होंगे। हमारे यहाँ बहुत ओपननेस मान लो है और उनके कल्चर में नहीं है, तो हमें उनके माइंडसेट को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा हम नैरो माइंडेड है या बड़ा कम फ्रीडम है, उनके यहाँ बहुत ज़्यादा, तो हमको उसको भी एक्सेप्ट करना। तो ये है दैट इज़ कम्युनिकेशन स्टाइल्स, कि उनका पहनना, ओढ़ना, बोलना,
खाना पीना, लिविंग, वर्बल नॉन वर्बल जैसा भी कम्युनिकेशन है हमें उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, उनको हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। वैल्यूज़ करना पड़ेगा इंडिविजुअल्स वर्सेस कलेक्टिविज्म, है ना। फिर पावर, डिस्टेंस, अनसर्टेनिटी, अवॉइडेंस, मैस्कुलिनिटी वर्सेस फेमिनिटी, हर जगह डिफरेंसेस है, वैल्यूज़ है। क्या इंडिविजुअल, मेरा अपना, मैं अकेला, लेकिन कम्युनिटी में, कलेक्टिविज्म में हमको बहुत सारी चीज़ें ओवरलुक करना पड़ती है। फिर पावर, डिस्टेंस, है ना। तो फिर हमारे यहाँ कोई बहुत रिच है, कोई बहुत अच्छी पोजीशन में, मनी, मसल, पावर, उसके पास सब कुछ है, हमारे पास नहीं है, तब भी हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, है या नहीं है। अनसर्टेनिटी, अवॉइडेंस, है ना। फिर हमें कुछ चीज़ें अवॉइड करना पड़ता है, मेल वर्सेस फीमेल अवॉइड, मिल के चलना पड़ता है। लॉन्ग टर्म वर्सेस शॉर्ट टर्म ओरिएंटेशन, कि भाई ठीक है थोड़े दिन अभी आपको हल्ला होगा, हमारे यहाँ शादी है, और लॉन्ग टर्म के लिए कभी कभी हमें वो भी एक्सेप्ट करना, ये सारी चीज़ें हैं। बेनिफिट्स क्या है, रिलीजियस बेनिफिट्स है, सोशल नॉर्म्स है, एथिकल प्रिंसिपल्स है, हार्मनी है कुल मिलाकर ये, है ना। और बिहेवियर्स, कस्टम सब है। ये बड़ा कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ये सब आप पढ़ लेना, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं। मैं उसको इसलिए नहीं पढ़ रही कि आपको समझ में तो आ ही गया है ना। अब इंटरनेशनल बिजनेस पर्पस, भाई आपका पेपर का नाम ही बिजनेस कम्युनिकेशन है, तो पर्पस क्या है, क्रॉस कल्चरल अवेयरनेस। ये टॉपिक क्यों दिया आपको, क्योंकि आपको इंटरनेशनल बिजनेस के लिए जाना है, बाहर जाना है, तो वहाँ पे आप सक्सेसफुली निगोशिएट कर पाओगे, आप उनके कल्चर को, वो आपके कल्चर को एक्सेप्ट करेंगे। बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद इंटरनेशनल पार्टनर्स, तो इंटरनेशनल पार्टनर से आपके अच्छे रिलेशंस बनेंगे। हम तो इंडिया में इतने सारे अलग अलग कस्टम्स को, क्रीड्स को, रिलीजन को देखते हैं, तो इवन आप गुजरात जाओगे, महाराष्ट्र जाओगे, वहाँ के कल्चर को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो वो है एक पर्पस। दूसरा, ग्लोबल ट्रैवल एंड टूरिज़्म, है ना। इन्हांसिंग इंटरेक्शन विद पीपल, तो आपका नेचुरली आपका भी पर्सनालिटी डेवलप होती है, क्योंकि आप अलग अलग तरह के लोगों से मिलते हो, तो आप ग्लोबल ट्रैवल करते हो, टूरिज़्म। फिर एजुकेशन, क्रिएटिंग इंक्लूसिव लर्निंग एटमॉस्फेयर एंड फॉस्टरिंग अंडरस्टैंडिंग अमंग स्टूडेंट्स फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड, क्योंकि अलग अलग बैकग्राउंड से बच्चे आते हैं, तो नॉट ओनली एजुकेशन बट आपकी होलिस्टिक पर्सनालिटी पूरी डेवलप होती है ना। हेल्थ केयर, प्रोवाइडिंग कल्चरली सेंसिटिव एंड इफेक्टिव पेशेंट केयर, तो हम एक दूसरे की हेल्प करें, मदद करें अगर उनकी बहुत तबीयत ख़राब है, तो ये सब हेल्थ केयर। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बिल्डिंग, मीनिंगफुल कनेक्शन विद इंडिविजुअल फ्रॉम डिफरेंट कल्चरल बैकग्राउंड, फिर भी हम उनको एक्सेप्ट करते हैं, तो ये इंटरपर्सनल है। इन एसेंस क्रॉस कल्चरल अवेयरनेस इज़ अबाउट डेवलपिंग द कॉग्निटिव, मतलब मन से अंदर, इमोशनल एंड बिहेवियर, आपका बिहेवियर स्किल जो है, नीडेड टू नेविगेट द एंड थ्राइव इन अ डाइवर्स एंड इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड, कि जहाँ हम पूरे वर्ल्ड से आज कनेक्टेड है, तो हम उनको एक्सेप्ट करें मेनली, है ना, उनके हर बात को इशू ना बनाएं। इट प्रमोट्स इफेक्टिव कम्युनिकेशन, रिड्यूसेस मिसअंडरस्टैंडिंग, नेचुरली आप अच्छी, आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग भी नहीं होगी, एंड फॉस्टर्स पॉजिटिव रिलेशनशिप अक्रॉस कल्चरल बाउंड्रीज, है ना। ठीक है। फिर व्हाट इज़ मेंट बाय नोटिस, स्टेट द पॉइंट्स। ठीक है, नोटिस क्या है, नोटिस द फॉर्मल रिटन और प्रिंटेड अनाउंसमेंट। नोटिस आता है ना, तो ये बस ये आप ऐसे छोटे छोटे टर्म्स याद कर लो कि ये तो लिखना ही है। क्या है, फॉर्मल रिटन, है ना, रिटन और प्रिंटेड अनाउंसमेंट, या तो रिटन अनाउंसमेंट है ही, फॉर्मल तो है ही, तो फॉर्मल अनाउंसमेंट है जो रिटन या प्रिंटेड हो सकता है। दैट इन्फॉर्म्स अ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल अबाउट अपकमिंग इवेंट, कि क्या आने वाला है, मीटिंग होने वाली है, इम्पॉर्टेंट, देखते ना नोटिस आता है। तो इट सर्व्स एज एन ऑफिशियल कम्युनिकेशन, जो एक ऑफिशियल कम्युनिकेशन होता है, टू इंश्योर दैट द इंटेंडेड रेसिपिएंट्स आर अवेयर ऑफ डिटेल्स एंड कैन टेक नेसेसरी एक्शन। हमारे यहाँ ग्रुप में आता है ना, जैसे नोटिस आ जाता है कि भाई आपको कल 9:30 अभी एग्ज़ाम हो रहे थे, तो आपको एग्ज़ाम कंट्रोल रूम में 10 बजे से एग्ज़ाम है, लेकिन सपोज़ 9:15 यू हैव टू रिपोर्ट, तो हमें 9:15 एग्ज़ाम कंट्रोल रूम में रिपोर्ट करनी पड़ती थी, और आपको 5 मिनट में यू हैव टू कलेक्ट योर कॉपीज़ एंड रीच टू योर क्लासरूम वेयर यू आर सपोज टू डू इन्विजिलेशन। तो ये सारे नोटिस हैं, क्योंकि हमें इन्फॉर्म किया, कम्युनिकेट कर दिया, हम इंश्योर हो गए, हमने उसमें अगर अब तो
बहुत सारा सब वर्चुअल हो रहा है, ब्लू टिक हो गया, देख लिया, सीन दिख जाता है, किसने देखा, आपको देखना ही है, यू आर सपोज टू सी। और उसके बाद आपको उसमें एक्शन लेना है कि टाइमली आपको नोटिस में दिख गया और वो अगले दिन उसको एक्शन में लाना है ना। तो नोटिस ऑफ अ मीटिंग, तो क्या क्या पॉइंट्स हम माइंड में रख सकते हैं। मान लीजिए कि पॉइंट्स टू बी कैप्ट इन माइंड बिफोर इशूइंग अ नोटिस ऑफ अ मीटिंग। मान लो नोटिस मीटिंग का निकाल रहे हो तो क्या लिखोगे, अथॉरिटी, एंश्योर दैट द नोटिस इज इशूड बाय द अथॉरिटी, है ना, तो ऑथराइज पर्सन और बॉडी एज पर द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और रेलिवेंट लीगल प्रोविजंस। मैं अपने फिर से एग्जांपल कॉलेज का दूँ तो यहाँ पे जो अथॉरिटी है उनके बिहाफ में प्रिंसिपल और सिस्टर के सिग्नेचर होंगे, एक हार्ड कॉपी में पूरा नोटिस बनेगा, उसकी फ़ोटो और उसके साथ में कोई उसमें सपोर्टिव कुछ मैसेज होगा तो उसको नोटिस माना जाएगा, ठीक है। तो अथॉरिटी के सिग्नेचर सील साइन सिग्नेचर होते हैं। फिर पर्पस ऑफ मीटिंग बताना पड़ेगा, क्लैरिटी स्टेट द पर्पस और एजेंडा क्या है भाई, कल क्यों है मीटिंग, तो वो सब बताना है। फिर डेट एंड टाइम बहुत ज़रूरी है, उस पूरा डेटा कि भाई डेट और टाइम क्या है, एग्जैक्ट डेट और टाइम, वेन्यू कहाँ है, कितने बजे होने वाली है। फिर टारगेट ऑडियंस कौन है, मान लो बाहर से भी लोग आ रहे हैं तो कौन आ रहे हैं। फिर क्लैरिटी एंड कंसाइजनेस, बिल्कुल क्लियर और कोई डोंट टॉक हियर एंड देयर, बिल्कुल टू द पॉइंट। तो ये सब पॉइंट्स जो मैं पढ़ रही हूँ उसको ध्यान से पढ़ लेना, याद कर लेना। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लगा दो अगर है तो कोई, तो वो भी उसके साथ लग जाएगा। और इस तरह से, है ना। फिर कोरम वोरम ये सब छोड़ दो आप तो। फिर स्पेसिफिक स्पेशल इंस्ट्रक्शन अगर है कि अपने साथ नोटबुक और वो लेकर आए या आप कैलकुलेटर लेके आए, कुछ भी कुछ अगर ऐसा है तो। फिर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, प्रोवाइड कॉन्टैक्ट डिटेल्स कि अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन है, नेम है, ये है, फ़ोन नंबर, इनसे कॉन्टैक्ट करें, ऐसा। तो ये सारी चीज़ें मैंने जो पढ़ा, प्रूफ ऑफ डिसएबेटमेंट, ये सब पढ़ लेना, ठीक है। ये उन्होंने एक अच्छी बात है, अगर आप इसको कल पढ़ के देख लो, एक नोटिस का उन्होंने वो दिया है आपको, सैंपल दिया है ना। ठीक है, तो ये एक और हो गया। फिर उसके बाद ये पढ़ लेना बेटा, ये पेपर है ना। फिर राइट अ कंप्लेंट टू द रेलवे अथॉरिटीज़, ये आएगा बेटा बरेली रिगार्डिंग दिस, है ना। तो इसको ऐसे लिखना है, ये बहुत मैसेस लिखा है, ये लिखा है मैसेस, है ना। कंपनी को जब लिखते हैं तो हम ऐसे ही लिखते हैं, MSS, इसको ऐसे याद कर लेना ऐसे, ये मैसेस कंपनी के लिए ही लिखा जाता है, ये ऐसा। तो ये मैसेस है, राम एंड कंपनी। फिर आप अपना एड्रेस लिखोगे, इंदौर, ऐसे करके, सुप्रिटेंडेंट, है ना, रायबरेली, उनको जिनको एड्रेस कर रहे हो वो। सब्जेक्ट लिखा कि कंप्लेंट रिगार्डिंग नॉन डिलीवरी ऑफ स्पीड पोस्ट पार्सल, है ना, कि हमने स्पीड पोस्ट किया अभी तक आया नहीं, ट्रैकिंग नंबर आ ही जाता है, वो मेंशन कर दो। और फिर लिखो कि दिस इज़ टू लॉन्च अ फॉर्मल कंप्लेंट रिगार्डिंग द नॉन डिलीवरी ऑफ स्पीड पोस्ट पार्सल दैट वाज बुक्ड बाय अस ऑन, जो भी आपका डिटेल है, इंदौर सिटी, है ना। द स्पीड पोस्ट ट्रेसिंग नंबर इज सो एंड सो, है ना, वो डाल दिया। और इस तरह से लिखते हैं, तो इसको देख लेना। द कंटेंट्स ऑफ द पार्सल वर सो एंड सो, में क्या क्या रखा है, क्या पार्सल है। वी हैड ऑप्टेड फॉर स्पीड पोस्ट सर्विस टू एंश्योर टाइमली एंड सिक्योर डिलीवरी, पर भी आपने नहीं की, अकॉर्डिंग टू आर ट्रैकिंग रिकॉर्ड्स, है ना, जो भी आपके पास है। द पार्सल वॉज लास्ट सीन इन दिस, ये सब आप पढ़ लेना बेटा इसको, है ना। इसका शॉर्ट भी कर सकते हो, ठीक है। फिर CV बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रिपेयर अ CV, ये वाला क्वेश्चन, राइट नोट्स ऑन इट, है ना। ये प्रिपेयर अ CV, तो ये CV क्या है, करिकुलम विटे है, इसको पढ़ लेना। मैंने क्लास में अच्छे से पढ़ाया है इसको क्लास में। इसमें कंटेंट आपका बहुत क्लियर होना चाहिए, इंक्लूडिंग पर्सनल डिटेल्स, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, समर, क्या क्या डालते हो आप, समरी, ऑब्जेक्टिव, है ना, आपकी स्किल्स, अचीवमेंट्स, ठीक है, ये सारा लिखना भी है आपको। फिर फॉर्मेट एंड स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, यूजिंग क्लियर, कंसाइज एंड प्रोफेशनल फॉर्मेट। मैंने बताया ना फॉर्मेट क्यों, क्योंकि उससे प्रोफेशनलिज्म आता है, क्लैरिटी आती है। टेलरिंग, कस्टमाइजिंग द CV टू ईच स्पेसिफिक जॉब,
टेलरिंग मतलब उसको आप रिफाइन करके किसके लिए भेज रहे हो तो चेंज करोगे। कीवर्ड्स होते हैं इनकॉर्पोरेटिंग कीवर्ड्स फ्रॉम जॉब डिस्क्रिप्शन, तो उसमें किस कंपनी में कहाँ भेज रहे हो, किस पोजीशन के लिए भेज रहे हो। एक्यूरेसी एंड प्रूफ रीडिंग, बार बार पढ़ो, प्रूफ रीडिंग करो, ग्रामेटिकल एरर्स मत करो, कंसाइजनेस हो, शॉर्ट में एकदम ज़्यादा बात नहीं करना। फिर एक्शन वर्ब्स है ना, फिर आप के एक्शन वर्ब्स मतलब यूजिंग स्ट्रॉन्ग एक्शन वर्ब्स, मतलब वोकैब आपकी बहुत अच्छी। एक्शन वर्ब से मतलब होता है कि इफ़ आई गेट अपॉर्चुनिटी आई विल प्रूव माई सेल्फ, ऐसा कुछ इस तरह के आपके स्ट्रॉन्ग वर्ड्स आपको यूज़ करना है जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बताते हो, है ना। ये हो गया। फिर दूसरा है कवरिंग लेटर। अभी हमने CV देखा, कवरिंग लेटर भी आता है। कवरिंग लेटर क्या होता है? लेटर अकम्पेन्स अ CV। तो जैसे आपका ये CV है तो इसके ऊपर साथ में भेजते हो आप एक और लेटर, उसको कवरिंग लेटर कहते हैं, है ना। तो सर्व्स एज अ इंट्रोडक्शन टू जॉब एप्लीकेशन, की एस्पेक्ट्स ऑफ प्रिपेयरिंग स्ट्रॉन्ग कवरिंग लेटर। पर्पस क्या है? तो एक्सप्रेसिंग इंटरेस्ट इन अ स्पेसिफिक पोजीशन, तो आप एक पोजीशन हाईलाइटिंग रेलिवेंट स्किल्स एंड experiences and explaining why the application is a good fit for the role and company। फिर स्ट्रक्चर टिपिकली इंक्लूड्स एन इंट्रोडक्शन, तो वहाँ पे कैसा स्ट्रक्चर है, बॉडी पैराग्राफ एंड ऑल, टेलरिंग, एड्रेस और ये सब ये पढ़ लेना बेटा। फिर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या है ये पूरा पढ़ लेना अच्छे से ना, प्रूफ रीडिंग करना, हाईलाइटिंग। अब C है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में फेशियल एक्सप्रेशन आते हैं, बॉडी लैंग्वेज आती है, पढ़ लेना, कई बार बता चुकी हूँ क्लास में। प्रॉक्सिमिक्स का मतलब होता है कि आपकी बॉडी लैंग्वेज से मेंटल और फिज़िकल डिस्टेंस देखना चाहिए। फिर हैप्टिक्स होता है कि टच करके, जैसे मम्मी कहती है शाबाश, तो पीठ में टच करना, इसको हैप्टिक्स कहते हैं। तो फैकल्टी कई बार बच्चों को करती है, उसको हैप्टिक्स, वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आता है। क्रोनिमिक्स मतलब अलग अलग टाइम में, मान लो मॉर्निंग में कम्युनिकेट, आपके फादर को आप बिल्कुल वो बाहर निकलने वाले हैं ऑफिस के लिए और आप जाके खड़े हो गए और आप इरिटेट हो रहे हो क्योंकि आपको फ़ोन चाहिए है, नया सेल फ़ोन चाहिए, तो ये एक प्रॉपर टाइम नहीं है। पर शाम को जब वो आए, रिलैक्स हो गए, टीवी देख रहे हैं, तब आपने कहा, तो आपकी बात, आपका कम्युनिकेशन, वो एक टाइम ही अपने आप में एक चीज़ कम्युनिकेट करता है, विच इज़ कॉल्ड क्रॉनिमिक्स। क्रॉन मतलब टाइम, है ना। फिर पैरा लैंग्वेज, तो वोकल सच एज टोन, पिच, अगर आप अपनी बात बहुत अच्छी टोन में, बहुत अच्छे पिच में बोलते हो अपने बॉस से किसे, तो वो भी दैट इज़ ऑल्सो नॉन वर्बल, क्योंकि आप किस टोन में बात कर रहे हो, वही बात कर रहे हो आप, लेकिन आपका टोन, लहजा, आपका वॉल्यूम, सब कुछ प्रॉपर होना चाहिए। फिर फिज़िकल अपीयरेंस अच्छा होना चाहिए, ये सब नॉन वर्बल में आता है ना। कम्युनिकेशन स्किल्स कई बार बताया है, इसको ज़रूर पढ़ लेना। मैं अभी थोड़ा काम है इसलिए नहीं बता पा रही हूँ ज़्यादा डिटेल। एक्टिव लिसनिंग है ना, कम्युनिकेशन स्किल्स में आती है, आप कितने ध्यान से लोगों को सुनते हो। वर्बल कम्युनिकेशन, आपका लहजा, आपकी लैंग्वेज कितनी क्लियर है, आपके पास कितने अच्छे वर्ड्स हैं। नॉन वर्बल, आप कितने फेशियल एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज कितनी पॉजिटिव है। रिटन कम्युनिकेशन, आप कितने अच्छे से लिख पाते हो। एम्पैथी, दूसरों को कितना समझते हो, क्लियर कितने हो, कंसाइज कितने, अडेप्टेबिलिटी है, ये सब चीज़ें है ना। फिर ये लेटर भी आता है बेटा, तो ये भी पढ़ लेना, ठीक है। तो मैं इसका डिटेल भी अभी आपको भेज रही हूँ, ठीक है। ये वाला पूरा कम्युनिकेशन जो है ये भेज देती हूँ, है ना, क्वेश्चन पेपर। तो आप क्वेश्चन पेपर से भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो मैं ये क्वेश्चन पेपर अभी पोस्ट कर दूँगी। एक्चुअली इसमें हाँ हो रहा है, कॉपी टेक्स्ट हो रहा है, मैं भेज दूँ, ठीक है। चलो, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।